سینیٹر اعجاز شیخ گوہر اعجاز گروپ لیک سٹی، یہ ایک بلند ہمت شخص کی کہانی ہے جسے اس کے بیٹے نے بہت جان فشانی سے آگے بڑھایا۔ 200 سال کی روایت مجھے ستارہ امتیاز کی صورت میں ایک بڑا قومی اعزاز اور لیجنڈ آف ایپٹما کا خطاب ملا تو یوں لگا میرے بزرگوں کو خراج تحسین ہے۔ میں ایک بڑا کاروباری روایت کا امین ہوں۔ ہمارا سلسلہ چنیوٹ کی ایک مشہور شخصیت بابا سلطان محمود مغو سے ملتا ہے۔ 150 سال قبل ہندوستان کے ایک شہر پانی پت سے آ کر چنیوٹ کے نواح میں آباد ہوئے۔ پانی پت میں وہ کاروبار کرتے تھے لیکن چنیوٹ کے قریب واڑہ نامی گاؤں میں انہوں نے ذمہ دارا شروع کر دیا۔ 1795 کے لگ بھگ وہ گاؤں کی محدود فضا سے نکل کر چنیوٹ آ گئے اور بہت جلد علاقے کی معتبر شخصیات میں شمار ہونے لگے۔ میرے دادا میاں نذیر حسین پاکستان بننے کے بعد 1947 میں کراچی پہنچے۔ قیام پاکستان سے پہلے وہ کلکتہ میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے بیٹے میرے والد شیخ اعجاز احمد ایک مثالی انسان تھے۔ ہم جو کچھ ہیں سب انہی کی سوچ اور محنت کا ثمر ہے۔ انہی کی کامیابیوں کے طفیل کنگ آف کموڈیٹیز اور کنگ آف کیمیکلز جیسے خطاب ملے۔ وہ 28 فروری 1941 کو چنیوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور پھر رفتہ رفتہ کاروبار کی اس 200 سال پرانی روایت سے منسلک ہو گئے جس کا آغاز ہمارے بزرگوں نے کیا۔ اس روایت کا نام تجارت تھا اور یہ چنیوٹی شیخ برادری کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ تاجر سے سینیٹر۔ میرے والد ذہین طالب علم تھے۔ انہوں نے سندھ مدرسہ سے میٹرک، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے MBA کیا۔ میرے دادا کا اچھا خاصا کاروبار تھا لیکن میرے والد نے اپنے کیریئر کا آغاز 500 روپے کی ملازمت سے کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ خود اپنی محنت سے کچھ رقم کمائیں پھر اس رقم سے کاروبار کریں۔ خود انصاری کا جذبہ ان کی شخصیت کا اہم جز تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب کچھ رقم پس انداز ہوئی تو انہوں نے اس سے تجارت شروع کی۔ اعلیٰ تعلیم اور محنت کی بدولت بہت تیزی سے ترقی کی اور ایک دور یہ بھی آیا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کیمیکلز درآمد کرنے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ اسی دوران انہیں سیاست سے دلچسپی ہوئی اور وہ 1987 کے انتخابات میں سندھ سے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ سیاست کا راستہ بھی انہوں نے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنایا تھا۔ انہوں نے سیاست سے کچھ نہیں لیا، وہ لینے والوں میں سے نہیں دینے والوں میں سے تھے۔ 1990 کی کساد بازاری میں انہیں کاروبار میں بھاری خسارہ کا سامنا کرنا پڑا مگر شیخ اعجاز احمد نے، جسے جوڑیہ بازار استاد اعجاز احمد کہتا تھا، تھوڑے ہی عرصے میں بینکوں کا سارا قرضہ واپس کیا۔ جوڑیہ بازار میں عزت اور احترام کا جو مقام انہیں ملا وہ ان کی ذہانت اور محنت کا نتیجہ تھا۔ 1999 میں انہوں نے عمران شپنگ کے نام سے پہلی ٹیکسٹائل مل لگائی۔ میرا کاروبار میں آنا قدرتی امر تھا۔ میں کبھی کبھار جوڑیہ بازار میں اپنے والد کی کرسی پر بیٹھتا تو کاروبار ہی کے خواب دیکھتا۔ اب واپس مڑ کے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ کاروبار کے گر سیکھنے کے لیے یہی جگہ میری سب سے بڑی درسگاہ تھی۔ 1990 میں کراچی سے لاہور شفٹ ہوا تو میری عمر 24 برس تھی۔ لاہور آ کے میں نے والد کی سرپرستی میں اعجاز گروپ کی بنیاد رکھی۔ 1999 میں ہماری پہلی مل کا آغاز ہوا اور 2004 میں ریئل اسٹیٹ کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ کاروبار کے مروجہ شعبوں میں یہ ایک اور اضافہ تھا۔ چمڑے اور ٹیکسٹائل سے دوری ہماری تخلیقی صلاحیتوں کا ایک اور مظہر۔ کاروباری سفر میں نے 2004 میں 2000 ایکڑ پر مشتمل لیک سٹی کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ میں پہلا چنیوٹی شیخ تھا جس نے اتنے بڑے پیمانے پر ریئل اسٹیٹ کی طرف قدم بڑھایا۔ میرے والد گردے کی بیماری کی وجہ سے 1998 میں اس دنیا سے چل بسے۔ ہمارے خاندان کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ ان کی شخصیت ایک گھنے پیڑ کی طرح تھی جس کے سائے میں ہمیں صرف نہیں بلکہ بہت سے اور لوگوں کو بھی جگہ ملی۔ چنیوٹی شیخوں کو کاروبار کے گر بچپن سے سکھا دیے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر باہر سوائے کاروبار کے اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ سادگی، انکسار اور محنت ہم ان سے دور نہیں جاتے۔ ہمارے اور ہمارے ملازموں کے درمیان عہدے یا مرتبے کی کوئی رکاوٹ حائل نہیں۔ ہم کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں۔ کاروبار میں عروج اور زوال تو آتے ہی ہیں لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو بے جا اخراجات سے پرہیز کرے۔ جس کاروبار کے اخراجات بڑھنے لگیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھائیں۔ میرے والد کہتے تھے کہ وہی شخص کو ترقی کرتا ہے جو مندی کے زمانے میں بھی خود کو سنبھال سکے۔ 25,000 سپینڈل کی ایک مل کم از کم 2.5 ارب روپے میں لگتی ہے۔ الحمدللہ ہم 1 لاکھ سپینڈل کی ملیں چلا رہے ہیں اور پھر 8,000 گھروں پہ یہ پھیلا ہوا لیک سٹی پروجیکٹ ان سے ایک ہے۔ میں ان تمام کاروباروں کو انہی اصولوں کے تحت چلانے کی کوشش کرتا ہوں جن کی تعلیم میرے دادا اور میرے والد نے دی۔
टेक्नोलॉजी की वजह से काम करने का अंदाज़ बदल सकता है, ये असूल नहीं बदल सकते। मेरे वालिद के भाई शौकत अहमद भी कारोबारी हवाले से बहुत बड़ा नाम है और वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर थे। वो वफाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। मेरे वालिद 1987 में सेनेटर मुंतखब हुए और मैं खुद आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का सदर रह चुका हूँ। ये मुल्क की सबसे बड़ी कारोबारी तंजीम है। मैं वफाकी वजारत तिजारत और टेक्सटाइल की एडवाइजरी बोर्ड में शामिल रहा और 2009 में टेक्सटाइल की सनत का साथ बाजारी का शिकार हुई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मुझे बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब किया और मैंने सनत के मसाइल हल करने के लिए दिन रात एक कर दिए। मैं समझता हूँ कि हमें कारोबारी मामला तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इसके साथ साथ कौमी सतह पर भी किरदार अदा करना चाहिए। मेरे वालिद ने जिन रवायत की बुनियाद रखी मैं कभी इनसे दूर ना हुआ। मुस्तकबिल की क़ियादत चिनियोटी शेखों ने अपने कारोबार का आगाज़ 19वीं सदी में किया और आज अक्सर ख़ानदानों की 5वीं पुश्त कारोबार कर रही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर हम 1947 को एक हाथ तस्लीम कर लें तो इससे पहले आने वाले बुज़ुर्गों की मेहनत, तजर्बा और नेक नामी हमारे कारोबार की बुनियाद बनी। क़यामी पाकिस्तान के बाद आने वाली नस्लों ने बुज़ुर्गों की इस मेहनत को और आगे बढ़ाया और चिनियोटी बिरादरी को दुनिया भर में शोहरत मिली। ऐसा मुनीर, शहजादा आलिम मन्नू, सेनेटर इजाज़, शेख अल्ताफ़ सलीम, मियाँ रफ़ी, मियाँ मोहम्मद मनशा जैसे लोग रोल मॉडल थे। इन्हीं को देखकर चिनियोटियों के अलावा भी हज़ारों लोगों ने आगे बढ़ना सीखा। एक कामयाब शख्स बहुत से लोगों को कामयाबी के गुर सिखाता है। कारोबार किताब पढ़ के नहीं आता, कारोबार किसी अच्छे कारोबारी को देख के आता है या किसी के उस्ताद तस्लीम करके आता है। कारोबार में मौक़े की अपनी अहमियत है। पाकिस्तान बनने के बाद जोग्राफियाई हदूद में कमी एक नुकसान थी, लेकिन हिंदुओं के जाने के बाद जो कारोबारी खला पैदा हुआ वो एक नया मौका भी था। आज हमारी बिरादरी के नौजवान अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ आगे आ रहे हैं। इनमें अहमद कमाल, SM तनवीर, फवाद मुख्तार, शाहिद अब्दुल्ला, SM शबीर, SM बशीर जैसे नाम शामिल हैं। ये तो चंद नाम है, असल में ये फ़हरिस्त 20 नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे बुज़ुर्गों ने जिस काम का आगाज़ किया, पाकिस्तान बनने के बाद कुछ लोगों ने इसको बुलंदी पर पहुंचाया और अब हम इसे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। कारोबार हमारे ज़ाती चैलेंज ही नहीं, कौमी ज़िम्मेदारी भी है। मुझे पाकिस्तान और चिनियोटी शेखों कम्यूनिटी का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक नज़र आता है। मुझे यकीन है 150 साल पहले कारोबार की जो रवायत कायम हुई वो वक़्त के साथ साथ और मजबूत होगी। नेकी के चंद काम मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा उम्र ना पाई और मैं आज के इन दोस्तों को देखता हूँ तो महरूमी और बढ़ जाती है। जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो मैंने ऐद किया कि वक़्त से पहले ये दुख किसी और को नहीं मिलना चाहिए। इनका इंतकाल एक सरकारी अस्पताल में हुआ। मैंने फ़ैसला किया मुझे सरकारी अस्पतालों के साथ काम करना है ताकि वहाँ भी मियारी सहूलतें मुयस्सर हों। मैंने कुछ अर्सा बाद जना अस्पताल लाहौर को मुंतखब किया और अपने वालिद के सदका जारिया के तौर पर वहाँ डायलिसिस सेंटर बना दिया। इस सेंटर का आगाज़ 100 बेड्स पर से हुआ और ये बढ़कर 300 बेड्स हो चुके हैं। मेरा अज़म है कि इसे 1000 बेड तक ले जाऊँ। इस वक्त ये एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर होगा। जब ये सेंटर शुरू हुआ तो हर रोज़ 40 डायलिसिस होते थे, आज रोज़ाना 120 डायलिसिस होते हैं। अल्लाह ताला ने इन तमाम अखराजात को उठाने की अजीम ज़िम्मेदारी भी हमें दी और हम इस तादाद को 40,000 सालाना तक लेकर जाएंगे। हज़ारों मरीज़ों की ज़िंदगी बेहतर होगी, बहुत से गरीब ख़ानदानों को जीने का हौसला मिलेगा। जब भी मुझे ये ऐत खुदाबंदी याद आती है जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया इसने पूरी इंसानियत को बचाया, तो मेरा सार जज्बा शुक्र से झुकने लगता है और मैंने अपने काम को ताकत बनाई और वालिद की याद में खुद को अस्पतालों की बेहतरी से मुंसलिक कर दिया। मैं लाहौर के हर बड़े अस्पताल के मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल रहा। लाहौर जनरल अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और मियो अस्पताल। जना अस्पताल से मेरी वाबस्तगी अपने वालिद की याद में बनाए हुए डायलिसिस सेंटर की वजह से हुई। ये डायलिसिस सेंटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की खूबसूरत मिसाल है। किस तरह मुखय्यर हजरात, समाजी इदारे और हुकूमत मिल के काम कर सकते हैं। एक डायलिसिस सेंटर के क़याम में चिनियोटी बिरादरी के एक और बुजुर्ग महबूब इकबाल टाटा की रहनुमाई भी शामिल थी। मेरे वालिद और मेरे चचा शौकत अहमद के दरमियान बहुत मोहब्बत थी और मेरे वालिद नौजवानी में ही ताजिर कम्यूनिटी के मोतबर रहनुमा बन चुके थे। कराची चैम्बर में 9वीं फ्लोर ग्रुप के नाम से ताजरों का ग्रुप मुनज़्ज़म हुआ तो इसमें सरफरस्त थे। इस ग्रुप के मशवरे पर वो सेनेट में पहुँचे। सेनेट जाने से पहले इन्होंने अपने छोटे भाई शौकत अहमद को कराची चैम्बर का सदर बनाया। शौकत अहमद हमारे ख़ानदान के सबसे नौजवान सदर होने का एजाज़ मिला। मेरे वालिद बीमार हुए और इनके गुर्दे ने जवाब दे दिया तो मेरे चचा ने अपना गुर्दा इन्हें पेश कर दिया। अगले 10 साल दोनों भाई सिर्फ एक
एक गुर्दे पर जिंदा रहे। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो आपस में बांट कर लो। बुजुर्गों के इस असूल पर अमल पैरा होने की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। वालिद 10 साल बाद भी इस दुनिया से चल बसे, चचा का साया अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। इज़हार और मोहब्बत का ये वाक़या हम कभी भूल नहीं सकते। इस वाक़े में हमारे बुजुर्गों की तरबियत और रिवायात की झलक दिखाई देती है। मेरे दादा ने 1963 में जो कुर्सी मेरे वालिद के हवाले की, इस पर मेरे वालिद 1985 तक बैठे और 1985 से लेकर 1990 तक मैं इस पर बैठकर काम करता रहा। फिर इसे छोड़कर लाहौर आ गया। इस कुर्सी में कोई ऐसी ही बरकत थी जिसकी वजह से हमारा सफ़र आगे बढ़ता रहा। जूड़िया बाज़ार में गुजरे हुए 5 सालों ने ही मुझे कारोबार के गुर सिखाए। जूड़िया बाज़ार का उस्ताद इजाज़ अहमद और फिर इसके दोस्त ज़ुबैर तुफ़ैल, इजाज़ इलाही मगू, नासिर हयात, शौकत अहमद, नसीर बरखोदारिया, शकील कलोडी और रफ़ीक सेठ, ये सब मेरे उस्ताद थे और इनके साथ काम करना मेरे लिए एजाज़ था। मैं अभी 20 साल का था जब कारोबार में आ गया। 5 साल कराची गुजारने के बाद जब मैं लाहौर पहुंचा तो यहाँ एक टेक्सटाइल मिल पहले से मौजूद थी। मैंने सबसे पहले इसकी इस्तेदाद को दुगना किया और रफ्ता रफ्ता इसे 1 लाख से पैनल तक ले गया। हमारे इस यूनिट का शुमार टॉप के 10 इदारों में होने लगा। इसी दौरान मैंने एक ऐसा कारोबार शुरू करने का फैसला किया जिसकी रिवायत चनियोटी कम्युनिटी में से पहले न थी। टेक्सटाइल को दुगना करने के बाद मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला कि ये कि मैं बैंकिंग सेक्टर में चला जाता, दूसरा रिफाइनरी बनाने की कोशिश करता और तीसरा रियल एस्टेट था। अब तक अपने सरमाए से काम करते थे, लेकिन रियल एस्टेट में अपने सरमाए के अलावा लोगों का सरमाया भी शामिल हो जाता, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अपना नुकसान तो बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन लोगों का नहीं। ये हमारी अखलाकी अक़दार के मुनाफी है। हम दूसरों की मेहनत और हक़ के हलाल की कमाई ज़ाया कर दें। मैं रियल एस्टेट में यही सोच कर आया कि दूसरों का नुकसान नहीं करना मेरी कामयाबी शायद इसका अजर है। जिस तरह मैंने 10 साल में टेक्सटाइल को दुगना किया, इसी तरह अब 10 साल में रियल एस्टेट का कारोबार भी दुगना हो गया। अब हम लेक सिटी फ़ेज़ 2 शुरू कर रहे हैं। लेक सिटी में जिन लोगों ने 10 साल पहले सरमायाकारी की, इनकी सासों में अल्हम्दुलिल्लाह 5 गुना इजाफा हो चुका। अब हम तक लेक सिटी के ज़रिए 5000 प्लाट और घर फराहम कर चुके हैं। मैं जब इन लोगों को अपने घरों में हंसता खेलता देखता हूँ तो वो हर लम्हा मेरे लिए शुक्र का होता है। लेक सिटी अब एक ब्रांड का नाम है, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा। मैंने इस प्रोजेक्ट को एक मुसव्विर की तरह पेंट किया। खून जिगर के बगैर कोई नक्श संवार नहीं सकता, लेकिन ये अभी आगाज़ है। हम बहुत दूर जाना चाहते हैं। मेरा काम सिर्फ ख्वाब देखना है। तबीर अल्लाह ताला देता है। कारोबार के हवाले से इजाज़ टेक्सटाइल और लेक सिटी कौमी मामलात को संवारने के लिए एमटबा की क़यादत और खिदमत खल्क के हवाले से इजाज़ डिलाइसिस सेंटर, ये सब मेरे सफ़र के मुख्तलिफ संग मील हैं। इजाज़ डिलाइसिस सेंटर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये लाहौर का सबसे बड़ा सेंटर बना, फिर पंजाब का और बहुत जल्द पाकिस्तान और फिर जनूबी एशिया का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। मुझे इदारा बनाने का शौक़ है। मैं चाहता हूँ अच्छा काम इंसान के साथ ख़त्म ना हो बल्कि अगली नस्लों तक चलता रहे। बाज़ लोगों की तरक्की का सफ़र इनकी ज़ात से शुरू होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। मेरे नज़दीक एक सफ़र के मुख्तलिफ मराइल हैं: ज़ात, ख़ानदान, कबीला, मुआशरा, पूरा वतन। अगर पाकिस्तान में किसी इंसान और एक मरले पर रुक जाए तो हम इसे कामयाबी नहीं कह सकते। कामयाबी एक मरले से गुजर कर अगले मरले तक पहुँचने का नाम है। कारोबार में अरूज जवाल तो आते हैं, लेकिन कामयाब वो होता है जो बेजा अखराजात से परहेज़ करे। जिस कारोबार के अखराजात बढ़ने लगे वो कामयाब नहीं हो सकता। वही शख्स तरक्की करता है जो चादर देख के पाँव फैलाए और मंदी के ज़माने में भी खुद को संभाल सके। ये असूल जूड़िया बाज़ार की एक काबिल एहतराम शख्सियत उस्ताद इजाज़ अहमद के मॉडल का हिस्सा थे। यही असूल इनके फ़ज़ांत लेक सिटी के गौहर इजाज़ का विरसा हैं। इन्हीं पे क्या मौकूफ़ ये हर इस शख्स के लिए भी है जिसके हाथ में मेहनत का तेशा है और अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है।